ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿ ਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਵਾਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਗੁਰਬਚਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮਰਿਆਦਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਪਰੇਮ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਮਾ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਡੀਪ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ, ਸੈਲਫ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ, ਸੋਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਜਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅਹਿਸਾਸਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਝੋਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਂ ਕੌਣ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਛੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਚੀਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਜੀਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਬਹਿਰੂਨੀ ਰੂਪ ਆ, ਰਸ ਆ, ਸੁਗੰਧ ਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰੂਪ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਹਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਮਰ ਰਸ ਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣ ਜੇ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੁਝਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜੇ ਲੱਖਾਂ ਜੋੜੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਜਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਓ ਹੋ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ, ਫਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਓ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਓ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ, ਉਹ ਮਨਾ
तू चिंतन करया कर, चितवणियां क्यों करदा, चिंता क्यों करदा आ, फिक्रमंदगियां क्यों करदा आ। फिक्र मन की पहचान बन गई है। बंदे दी अंदर दी दुनिया का मतलब सिर्फ चिंता रह गया, सिर्फ हर वक्त फिक्रमंद रहना, आ नहीं होया, आ हो गया, एवें होना सी, एवें होना, आ चीज़ां चल रही। लिटरली तौर पर बाणी च गुरु महाराज कहते, काहे रे मन चितवै, जो तेरे हिस्से आया तू वो कम कर, ये छड़ दे। उदम जां आहर हर जियो परया। जदों हरी ने तेरे अंदर आहर का एक टका किया आ, तेनों नैन प्राण दिते ने, तू चिंता ना कर, आहर कर, एफर्ट पा, यतन कर, भरोसा करतार ते रख। हुण आ जिहड़ी चीज़ आ, इहदे नाल बंदे दी किसी तरीके की वर्क परफॉर्मेंस, लाइफ परफॉर्मेंस अपने आप बैटर हो जाएगी। जिथे फिक्र इंतहा दा आ ते उत्थे ते फिर भी है बिना एफर्ट तो ही काम हो जाना। कोई सुपर नैचुरल पावर आके हैल्प कर दे, कोई करामात हो जाए, कोई आले दुआले। तो यहो जे लोग लभदे फिरदे सी टॉर्च बैटरियां लैके, कोई यहो जी कोई रेख च मेख ला दे, कोई तवीत धागा कुछ बना दे ताकि काम आही काम हो जाए, आही हो जाए। की हालत है। गुरु बाबा जी कहते इन्होंने दोवां चीज़ों चों बाहर निकलिया, कि फिक्र ना बहुता कर, दूसरा यहो जी चीज़ां ना लब, एवें कदी कुछ नहीं हुंदा। काहे रे मन चितवै उद्दम जां आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर दरिया। मेरे माधो जी, माधवी नहीं, माधवी माया नूं क्या लक्ष्मी, भारती खिते च लोग लक्ष्मी पूजते रहे हज़ारां हज़ारां साल तक। इतनी लक्ष्मी पूजी, सब कुछ किया, पर हकीकत यह है बेपति तो बिना कुछ भी पल्ले ना पिया। क्या गया है, सोने की चिड़ी सी, मुल्क इस तरह सी, इस तरह सी। भाई पता नहीं कित्थे सोने की चिड़ी ते किहड़ी सोने की झाल सीगी। इत्थे ते सोने के पत्तरे उदों लगे दरबार साहब वर्गी इमारत के उत्ते जदों महाराजा रणजीत सिंह का दौर चलता है। वो दौर चलता है जिहदे विच कुछ अकाल प्रस्तगी जिहड़े उस करतार ते भरोसा करके फिक्रां तो बाहर निकल के उद्यम ते जोर लाउंदे ने, ते फिर साडे सामने हालात बदलते हैं। जिक्र आया माधवी नहीं, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। उन्हें मैटाफोर दिता है, सूके कास्ट हरिया। जन होया जिहड़ा करतारी वडियाई में चला जाता है, जिहड़ा इस लैवल ते आ जाता है। सुक्की लकड़ हरी हो जानी है, मतलब सूके कास्ट हरिया का मतलब जानो ये मैटाफोर आ। बंदे दा जिहड़ा हौसला आ, बंदे दी जिहड़ी अंदर दी दुनिया आ, फिक्र की करते हैं, फिक्र बंदे नूं सुका दिंदे ने। बंदा जिन्ना ज़्यादा चिंतातुर हुंदा आ, चीज़ां तो नहीं सौरदियां, चीज़ां तो नहीं बनदियां उहदे नाल, हाँ उल्टा गड़बड़ सब हो जाती। अज क्या जाता है, समुचियां बीमारियां दा जे तुसी जड़ लभनी होए तो तुहानूं इक्को चीज़ लभेगी, ओवर वरीज, फिक्रमंदगी। बंदा फिक्र बहुत करता आ, नींद खराब हो गई, फिक्र बहुत करता आ, जिहड़ा डाइजेस्टिक सिस्टम सीगा, मेटाबॉलिज्म सीगा, खराब हो गया। फिक्र बहुत करता आ, लगातार जिहड़ा कार्डियल सिस्टम सीगा इत्ते जोर पै गया, ब्लड प्रेशर हाई या लो होना शुरू। ये सब चीज़ां च लभ जाएगा। ये जिन्ना बंदा उस पासे तुरया लगा जाएगा, आखिरकार ये तो फिर है सुक जाएगा। मतलब बीमारियां अलामत आएगी उस रूप दे विच। हरियावल आ जानी, माधो ते भरोसा करना, सत्संगत, यहो जिहा माहौल, यहो जे आले दुआले विच रहना जिथे अकाल पुरख वाहिगुरू का भरोसा तो उहदे गुणां दा जिक्र होए। क्योंकि जिन्ना उहदे गुणात्मक पक्ष का जिक्र असीं करांगे, जिन्ना मन नूं एहसास होएगा वो मना तू उहदे तो बिलोंग करदा है, तो कायम दायम है, वो मर नहीं गया, तेरे नाल है। क्यों घबराना है, क्यों डरदा है, क्यों डोलदा है। सो सब कहते हर जन राम नाम गुण गावे। हरी दा जन जिहड़ा आ वो इहो जिहा गुणगान करदा, इहो जी वडियाई स्तुति करदा है, तो किसी होर वास्ते नहीं है, विखाण वास्ते नहीं है, किसी नूं दस्सण वास्ते नहीं है, बल्कि जिहड़ी प्रार्थना भी है ये भी अपने मन की दुनिया दे नाल है। इहदे नाल ही झेड़ा, इहदे नाल ही झगड़ा आ।
ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਗਲ ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਤਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨੈਰੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਾਈ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਬਸ਼ਰ, ਸ਼ਖਸ, ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਾਤ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਪੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪੂਤਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਤ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੇਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਲ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਤਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਬਾਵਲਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਕਮ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇਲਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੇਲਾ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਮਨੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਥਾਨਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉਥਾਨਕਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਕਮਾਲੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਆ ਪੁਜਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਘਰ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਘਾਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
बाबा कबीर जी कहते तू क्या तो नहीं उन्होंने कुछ कहने लगा चित्ते बड़ा किया इसनों आखिरकार दोहरा के पूछा तो सही भी तेन पता भी है कुछ जिहड़ियां तू गल्लां कर रहा है। पर फिर ख्याल आया एक बार तुहाडे नाल जरूर गल कर लवां। बाबा कबीर कहते चंगा किया तू कुछ नहीं किया वधिया किया एक काम करी। एक्चुअली ये जन का तरीका भी हुंदा आ। देखो सारा संसार जे लड़न ही लग जाए एक दूजे के नाल ते भला कौन करेगा? क्योंकि साडा ते स्लोगन नहीं है फरीदा बुरे दा भला कर। जे बुरे नाल बुरा ही करांगे टिट फॉर टैट का कॉन्सैप्ट है जैसे को तैसा इट का जवाब पत्थर ना लगे रहो रिटैलीएट करते रहो सारी उम्र। जिहड़ी रिवेंज बेस्ड ये हालत आ घरां थावां दे विच झगड़े मुफाद क्यों नहीं कटते? क्यों नहीं लोग सुख का साह लेंदे घर बनाउंदे परिवार बुलाउंदे सब चीज़ां सुख वास्ते? अखीर पता लगता जिन्हां छत्तां नूं सुख लैण वास्ते बनाया सीगा उत्थे बाकी सब कुछ तो है सुख का पदार्थ हर तरह का है पर सुख नहीं है। हुण ना होने का कारण की है? क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू डील विद ईच अदर। पता नहीं किवें डील किवें करना है एक दूजे नूं इस तरीके नाल। मतलब जे है मनोवेग आ एक ने कुछ कहा दूजे ने उहदे ते उस तरीके नाल रिटैलीएट किया जवाब दिता खेड शुरू हो गई। जिन्होंने भगत फरीद जी ने कहा सी दुनी वजाई वजदी तू भी वजै नाल। जिवें ढोल ते थाप पई आवाज़ आई बस हो गया शुरू थाल ताप पैना। जिवें जिवें थापां पैणगियां आवाज़ां आउंदियां रहणगियां। जिहड़ा ये कई बार असीं कहने संसार खूह की आवाज़ है जिवें आवाज़ मारोगे उवें आवाज़। भाई संसार खूह की आवाज़ पर जिहड़े मनुख ने खूह थोड़ा ने उत्थे जीवंत जिउंदा जागदा एक सोझी वाला एक जी है कुदरत ने पैदा किया। उन्होंने पता होए मैनू कोई इस किस्म की प्रोवोकिंग करा रहा कोई मैनू कोई इस किस्म के गल कह रहा है मेरा फर्ज इत्थे की बनता है? जे प्रोवोकिंग ही करनी है जे इस तरीके ने एक दूजे दे उस रिटैलीएट ही करना है सब चीज़ें ही करनियां ने भाई फिर तो यह है कि फिर तो लोड़ नहीं फिर तो पशुओं की तरह उस तरीके काम चली जाएगा। बुरे का भला कर। कोई बुरा होके पेश आता है उन्होंने कहो भी तू भला एवें करीदा है मैं विखाना वा तेन भला करके तां अगले च बदलाव आएगा तब्दीली आएगी फर्क पेगा। इत्थों फिर संसार का सुधार ते परिवार का सुधार होएगा। जिहड़ी बात कर रहा सीगा बाबा कबीर जी वो कहते तू क्या तो नहीं कुछ? वो कहता चित्ते बड़ा किया जी। इन्हों दोहरा के पूछा भी आखिरकार वो तू कदों वेख्या मेरे पिता नूं जिहड़े तू कम किस किस्म की गल कह रहा? पर सोचिया तुहानूं पुछ लवां। बाबा कबीर जी कहते चंगा कीता नहीं सी कुछ कहना बल्कि जे किते दोबारा उधर जावें तो उन्होंने कुछ उसकी सेवा करी कुछ खाण पीण लई लैके जाई उहदे। कहने लगा जी ठीक है। हुण ऐसे पिता तो इहो जिहा संदेश मिलिया हुण हो गया ये कि वह रोज़ किते जदों कमाल जाता उधर नूं तो कभी कोई दुध लै जाता है कभी कुछ लै जाता है तो रोज़मर्रा बोल रहा दस रहा इस नाल कबीर जी नूं भंडो पत्स ना करो। करैक्टर असैसीनेशन जिहड़ी है ये कूड़ ते सच दा घोल है। तो कूड़ कहंदा है बंदे नूं चाहो तो फिजिकली मारो क्योंकि सच जिथे आ रहा पर सच मारना सौखा थोड़ा आ। साडे घरां दे शहीदां दी कतारां खड़ियां ने इस करके मारिया उन्होंने कि वो सचियार ने सच दे राह ते तुरन वाले ने। गुरु अर्जन साहब नूं फिजिकली असैसीनेट करके सच थोड़ा मर गया बल्कि सच उस लैवल ते प्रज्वलित होया कि गुरु हरगोबिंद साहब दे हत्थां दे असीं देखते हैं कि शमशीरां आ गईयां। उन्हां दे योधियां ने मुगलों के मूँह मोड़ के रख दिता है। तवारीख गवाह इस गल दे जिहदे उत्ते बड़े दानिशमंद कवि ने बड़े कमाल के बचन लिखे सीगे कि जदों गुरु अर्जन साहब की शहादत हो रही है तो शहादत कह रही है कि मेरी सभा को दबाना तो मुमकिन सही मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। मेरी होंद नूं ते मुकाण वास्ते तू उतातुर होया आ फिजिकली ऐ जालम हुक्मरान कोई गल नहीं मैनू तो तू कत्ल कर देगा तत्ती तवी ते बिठा देगा यह सब हो जाएगा। पर चेते रखी जिहड़ी एक बड़ी वड्डी वक्त च सलवट आ रही है तब्दीली आ रही है मैं देख रहा वो किवें रोकेगा नहीं रोक सकेगा। ये तो एक सच की एक लहर उठेगी इस रूप दे ये ठल्ली नहीं जानी तेरे तो। क्या मेरी सभा को दबाना तो मुमकिन सही मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीनो आतिश बहुत सरबुलंद सही
मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। फसीनो आतिश कहते जुल्मों गारत, बेतहाशा जुल्मों गारत होए। तो कई बारी वधिया होया जुल्म जालम ये सोचता आ जुल्म इतना वधा दो, इतना मतलब टैरीफाई कर दो अगले, बिल्कुल जिहड़ा हैगा उन्होंने यरका दो, डरा दो, तो उहदे नाल मतलब हयाती जिहड़ी चुप कर जे। कहते नहीं नहीं, जिहड़ी हयात है ललकार पाउंदी है, ये फिर इस तरह नहीं रुकदी नहीं, बल्कि फौलाद बन के सामने तो आउंदी है। वो कहते गल ये है, फसीनो आतिश बहुत सरबुलंद सही मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। ऐ मेरी परवाज को रोकने वालों, मेरे हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। मेरी परवाज तो रोक लोगे, मैनू तो हुण फिजिकल असैसीनेट कर लोगे, पर पिछे तो शमशीरां आ रही ने। भाव सच थोड़ा इस रूप में रोकता है, पर यदा मतलब ये नहीं कि जे उस तरीके नाल भी बात आई है तो जिस लैवल ते खड़ा उस लैवल ते आ जाए, ना 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 ना। मतलब ये झूठ का मुकाबला भी सच नाल करना है, नफरत का मुकाबला भी प्यार नाल करना है। ये जिहड़ी डर का मुकाबला भी निडरता नाल करना, निरभैता नाल करना है, स्नेह नाल करना। ये है निंदा के बदले निंदा नहीं गी, बखीलगी के बदले बखीलगी नहीं गी। फिर तो उस लैवल ते आ गए, चिक्कड़ के बदले चिक्कड़, एक किधर की चीज़ हो गई। बल्कि जिहड़ा बंदा बीमार है उहदा ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज किया जाए। तो कई बार इलाज सिर्फ भदसना विच नहीं होंदा, बल्कि उसनूं संभाल के उन्हें दसन विच हुंदा, वो एनर्जी चंगे पासे ला। खैर कमाल जाता है रोज़, कदे दुध पियाता, कभी कुछ इस किस्म के नाल। आखिर जिहड़ा बंदा इन्नी सेवा करे, छकाए कोई मेवे शेवे, तो बंदा पुछदा ही है भी तू कौन है भाई। वो एक दिन कितने पुजारी ने पूछ लिया भी तू कौन है। जो ये गल पूछी तो पांदे नूं बाबा कमाल वो कहते जिस कबीर दी तू सवेर तो शाम तक इतने भत्सना करदा वह मुंडा आ। डर गया, वही मैनू मेवे लिया के छका रहा सा, दुध लिया के छका रहा, कुछ पाया तो नहीं विच। कहना नहीं कुछ नहीं पाया। कहता ठीक है। फिर ख्याल आया हो सकता है बाप बेटे की बनती ना होए किते। कई बार भी हुंदा है परिवारों के बड़ा झगड़ा मुफाद हुंदा है, तो कहता की गल बाप ना बनती नहीं। कहता बाप तो जिंद जान है मेरी, बड़ा यहो जिहा बाप ते रब दुश्मन नूं देवे। वो कहता फिर कमाल हो गई, मैं तो उन्होंने इन्ना भंड रहा इत्थे सब कुछ, तू मैनू दुध पिया रहा, तू मैनू मेवे छका रहे, गल की है। कह लगा चित नहीं करता बिल्कुल भी, सच दसा बड़ा अंदर वल पैंदे ने भी आ की बन रहा है। पर इस सारे का जवाब तेनू कबीर ही देगा, पिता जी देणगे, क्योंकि उन्होंने पता है बारे। उन्होंने पता है, कहता हाँ उन्होंने दसिया, उन्हें ड्यूटी लाई है मेरी। खैर रिहा ना किया, भगत कबीर को आ गया, तो भगत कबीर जी ने आके कहना भी की होया, आ तुसी बेटे नूं भेज दे, तुहानूं पता मैं तो सब कुछ बोल दस्यो। कहते हाँ। कहते फिर ये क्यों सी। कहते इस करके क्योंकि तू साडी ड्यूटी कर रहा सीगा, तू साडे कपड़े धो रहा सीगा, निंदक हमरे कपड़े धोए, तू साडी असले च लॉन्ड्री कर रहा सीगा, तू तो साडी डर्ट धो रहा सीगा। भाई जिहड़ा बंदा इन्नी बेगारी करे, इन्ना काम करे, कोई सेवा तो करनी बनती होती। बंदा संसार दे विच जो इस लैवल ते सोचे, हकीकत है मैनू किसी ने एक गल कही मेरी पिठ पिछे, मैं वो पिछे चार करांगा, एनर्जी वेस्ट होंदी लगी जाएगी। यही सब कुछ हो रहा है। परिवारों के झगड़े होर कुछ नहीं, वाधू घाटू गल्लां कीतियां, एक ने दूजे के, दूजे ने तीजे के, यही निंदया सारे दी सारे। राम नाम गुण गावे, कित्थे राम नाम गुण गावे। बंदे दे अंदर ते एक दूजे नूं नीवां विखाण दी बिरती चल रही है, भंड लवां एक दूजे नूं, भत्सना कर लवां, दूजे नूं नीवां कह लवां, ये सब चीज़ां, ये सारी अलामत जिहड़ी है ये मार रही है। जाने तो बाहर आ गया। वो कहना मैं इस खेड का हिस्सा नहीं गा, मैं तो जे गल करांगा करतार की सिफत सलाह की करांगा, जे गल करांगा चंगेरी। हाँ जिथे किते कुछ औगणा की भी गल भी होएगी, माड़ेपन की गल भी होएगी, पर किसी नूं की कहना। असीं तो शब्दे पढ़ते हैं बाणी, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। भाई सानू छड्ड के सारे ही भले ने, जे बुराई देखनी तो अपने च देखनी, अपने ते फोकस करना है। इत्थे बचन सानू ये सिखाया गया, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरीवान में सिर्फ सैल्फ एनालिसिस कर। जानो ही है ना जिन्हें अपने आप नूं परखना हैगा, अपने आपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख, अपने गिरीवान झात मार। जिवें सूफियां दे कई बार असीं बोल पढ़ते हैं,
वो कहता कि हकीकत यह है कि जब अपने गुनाहों की ना थी खबर, रहे औरों के देखते ऐबो हुनर। जो अपने बारे कुछ पता नहीं सीगा, होरां दे ऐब हुनर तकते रहे सवेर तो शाम तक, उही चीज़ां चलदियां रही। वो कहते जब अपने गुनाहों की ना थी खबर, रहे औरों के देखते ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ गई नज़र तो नज़र में कोई भी बुरा ना रहा। जो अपने गुनाह ते नज़र पै गई प्यो हो हम तज भलो सब कोए, मैनू छड्ड के सारे ही भले ने। इस करके जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ मोटो या स्लोगन आ वो है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे, अपने आप में फोकस करो। ये गुरु नानक साहब का ही बचन आ, महाराज नूं असीं पढ़दे आ, नानक नीच कहे विचार। बाबा जी नीच ना, नीच ते दुनिया है। बाबा जी कहते नहीं, भले बंदे अपने आप नूं देख, जे किते झाड़ू फेरना तो अपने अंदर फेरना, अपने आप नूं सवारना है। क्यों बगानियां दे विहड़े झाड़ू फेरदा फिरना है, क्यों बगानियां दे विहड़े साफ करता फिरना है। इस करके बचन आया, जे कोई निंद करे हर जन की, जे कोई उस किस्म की बात भी पावे कि अनहोनी गल करे, किसी की बखीलगी, किसी को जन नूं भंडण का यतन करे, यानी कि अपना गुण ना गवावे। वो अपना गुण नहीं छड्डदा, वो उस लैवल ते नहीं आ जाता, वो बराबर आके उस किस्म के नालों मिट्टी की खेड दे विच नहीं आ जाता, बल्कि वो अपने आप को सुरखरू रखता उस गल तो, रहा उहदा पादा। ये हो किवें सकदा? हाउ कैन बी इट पॉसीबल? एक्चुअली इट सीम्स इट्स इम्पॉसीबल थिंग। नो वन कैन एक्चुअली हैव दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। ये कोई तुहाडी पत्सना कर रहा, समवन इज एक्चुअली spreading bad talk about you, someone is spreading bad rumors about you, and you are still very stable and you are not retaliating actually according to their behavior, according to their kind of actions. How come? ये किवें हो सकता है? फिर गुरु साहब ने क्या उसका कारण है, जो किछ करे सो आपे स्वामी। समझ आ गई, करन कराउण वाला अकाल पुरख वाहिगुरू आप ही आप है। वो करतार जिहड़ा आ उस रूप दे विच है, जो कुछ करे सो आपे स्वामी, वो आपे करन वाला आ, भाव सब विच वो वरत रहा आ। इसलिए रब जी दे इस पहाड़े नूं, इस हुक्म नूं मनना आ, कोई गल नहीं, अकल ही नहीं कि अगे शब्द आएगा इस रूप विच, जो कुछ करे सो आपे स्वामी, हरे आपे कार कमावे। एक आपे कार कमावे, इन्होंने इसे कारे लाया, ये कार आ, एक कार वखरे वखरे बख्शे हुए ने। जिवें सपोज करो कुछ लोगों नूं मिट्टी की खेड लाया, कुछ लोगों फुलों की खेड लाया। जिन्हों फुलों की खेड लाया वो करे मैं खुशबू नाल, मैं गुणा की गल ही करनी है, मैं गुणात्मक पक्ष नाल जुड़ के रहना आ, मैं गुणा तो थले आना ही नहीं गा। जिहड़ी उस किस्म की सोच रखने वाली हस्ती है, उसकी बात हुई, उन्होंने पता लग गया कि भाई जे कोई होर किसी कारे भी लगा है, भाई करतार अरदास करांगे दाता इनू भी तौफीकियत दे। क्या? हरे आपे कार कमावै, हरे आपे ही मत देवै स्वामी, हरे आपे बोल बुलावै, हरे आपे ही मत देवै स्वामी। मालक मत देने वाला आया। असीं आम करके पंजाबी जबान च कई वारी गल कह दिंदे आं, भाई उन्नी की गल करेगा जिन्नी कोई मत पाई अंदर, क्योंकि बाणी का बचन है, जो पाई है भांडे विच वस्त साह निकला है। जिहड़ी भांडे च चीज़ पई है, जे ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ तो ਦੁੱਧ निकलेगा, जे मर्चां पईयां तो मर्चां निकलणगीਆਂ। जिन्नियां क पईयां ने उस तवाजन च वो चीज़ जिहड़ी है जो असीं कहोगे बाहर आओगे जो अंदर। इसे लिए असीं मत्था रखदे हां कि मत्था मत दा प्रतीक है, दाता मत बख्शी। तो सानूं तो लिटरली तौर पर सिखाया गया, अरदासां करया करो कि हे अकाल पुरख वाहिगुरू मैं तेरे दर ते आया हाँ, तो बख्शिश कर, मैनूं नवाज दे। मेरी जिहड़ी है मेरी मत थोड़ी राम, मेरी मत बड़ी थोड़ी जी है। तो कई बार थोड़ी मत भी कहती मेरे अंदर तो दुरमत आ, मेरी तो मत ही जिन्हों क्या मारी गई है। तो ये भी पंजाबी दा खान कई बार असीं पढ़ीए, कहते ने भी रब जो सजा देंदा है, वो सजा देने का तरीका भी बड़ा कमाल दा है। वो कहते ना तो किसी नूं चपेड़ मारदा है, ना लत्त मारदा है, जदों भी मारदा बंदे दी मत मारदा है, मत ना मरे किसी की। जो असी आले दुआले सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, निंदिया बखीलगी भंड रहे हैं, सब ये सोच नहीं रहे मैं वड्डा किवें हो गया, किसी नूं निंद के, किसी नूं भंड के, किसी नूं नीवा कह के।
ये मत ही मारेगी बंदे दी। ये मरी हुई मती दे विचों ही इहो जिहा बिहेवियर सारा निकलदा है। सो इस करके अरदास ये हुई है, दाता मत दई, सानू भी तौफीकियत दई, आले दुआले भी मत दई। बंदा मत्था टेकदा इत्थे, मालका इनू नवाज, इनू बख्श। क्या हर आपे ही मत देवै स्वामी, हरे आपे बोल बुलावै। साडे बोले हुए बोल साडी मत दसदे ने। जिवें शेख सादी का बोल हुंदा है ना, वो कहंदा कि जिहड़ी आ बाणी च बचन पढ़दे हैं, कंचन काया कोट गढ़। सोना बड़ा कीमती है, पर सोना शरीर तो कीमती तो नहीं। असल सोना तो आ जीवन जिहड़ा मनुख दा, इहदे सामने हर सोना छोटा आ। जे कोई तुसीं शरीर वेखो, कंचन वर्गी काया ऐन वधिया, अरोग देही, बड़ी बाखूब फिजिकल स्ट्रक्चर, बड़ा वधिया उस तरीके दे नाल। पर कहंदा ये कोठड़ी सोने दी है कि लोहे दी है, ਇਹਦਾ पता किवें लगेगा जो कोठड़ी का मूँह खुलेगा। बंदा जो बोलेगा, बोलिया पता लगेगा ये सोना आ कि लोहा आ। जिवें ही बोल बोले, अल्फाज गुफ्तगू बंदे ने की, पता लगा हो जिहदे जबान जिहदे मूँह दे विच सवाए निंदिया तो, सवाए बखेलगी तो, सवाए इस सब चीज़ तो कुछ होर है ही नहीं। फिर कहना पेगा कोई मत नहीं गी, कोई सोझी नहीं गी। गुरु साहब की बाणी का बचन सानू ये समझाया गया। महाराज कहते निंदा भली किसे की नाही, मतलब माड़ा बोल तो किसी नूं भी नहीं बोलना, किसी नूं भी किसी रूप दे भदसन वास्ते भंडन वास्ते बिल्कुल। हाँ, सच नूं सच कहना वखरी गल, सच झूठ का फर्क नितारा, तो वह अपने ते दूजियां दे भले वास्ते, ये वास्ते है। बखेलगी मतलब किसी दे पिठ पिछे, जिन्होंने असीं कहने आ कि जिहड़ा हैगा आ बैक बाइट करनी। बंदा किसी नूं भंड रहा, किसी की भदसना उहदे च मौजूद है, ये कोई चंगा विहार नहीं हैगा। हाँ, जे तुहानूं किते कोई कमी खामी लगती है, उन्होंने दूर करने वास्ते मैं तो कई बार बेनती करदा, जिवें असीं आम करके अपने गुरुद्वारे संस्थावां या होर इहदे बारे विच ते बोलण लग्या कोई वातावा कोई सानूं एहसास नहीं रहिंदा। पर मैं कहना जिवें कोई किसी का अपना बच्चा होए, अपने कोई घर का बड़ा बच्चे खास करके जिहड़े ने, तो उन्होंने बंदा अंदर वड़ के समझाउंदा, होए तू आ काम नहीं करना, इस तरह करना है भाई। जे तुहाडा कम्यूनिटी नाल प्यार है, जे तुहाडा आले दुआले भाई एवें काम करो, भाई किसी की कमी खामी नूं दूर करने वास्ते मदद करो, ना कि उहदी भदसना करो, ना कि उहनूं इस रूप में भंडो। क्या निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन। जिहड़े मन दे मुरीद ने मुग्ध मूर्ख वो करते हैं इस रूप दे विच। ते क्या ये चेते रखी मनमुख मुग्ध करन, मूँह काले तिन निंदका, आखिरकार मूँह काला होएगा इस रूप दे विच। ते सब कहते नरके घोर पवन, घोर नरक। जिवें मत मारी गई ओहो जे बोल बचन बंदे ने शुरू कर दिते, ये फिर सिमरन बन जाता है। ये सिमरन आ, जिवें आपां परिवारां च वेखदे आ, परिवारां च कई वारी कल्चर ही बन जाता इस किस्म का। एक दूजे नूं मतलब आमो सामने मिले, बड़ा मुस्कुरा के, माड़े जे पिठ मुड़ी नहीं एक दूजे दे हल, मतलब उत्थे की पनप रहा, कूड़ पनप रहा चार चफेरे। इस कूड़ विचों ते घरां तुसीं देखो, नूंह सੱਸ की लड़ाई, नान भरजाई की लड़ाई, या घरां दे विच सहुरे परिवारां नाल जिहड़ियां ने जवाइयां दियां सांझां ना बननियां, ये सब की है? ये सब यही है जिन्हों असीं कह रहे हैं कि ये जिहड़ा हैगा बैक बाइट हो रही है, एक दूजे की इस किस्म के नाल चुगली, इस किस्म की वो सब। ते मत का कोई हालत नहीं गा, आपे बोल बुलावे अकाल पुरख वाहिगुरू जी, ये तुसीं सानू बोल बख्श रहे हो, भाव तुसीं सानू इहो जी मत दे रहे हो। तो मैं विनती करांगा, करतार बड़ा बेअंत है, जैहो जी मत मंगोगे ना ओहो जी मत दे देगा। शब्दों के शब्द पढ़े गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, जे मैं बयान करा, महाराज कहंदे कि गुरु कै शब्द बनावो एह मन गुरु कै दर्शन संचो हर तन, उत्तम मत मेरा हृदय तू आओ। अरदास करो दाता, मत ते देनी है तू, आखिरकार मत देने वाला सोमा तू ही है, पर दाता उत्तम मत नहीं, वो अकल दई जिहड़ी अकल भला कर सके मेरा। जे मैं इन्हूं मिसाली तौर पर बात करा, मैं प्रिजनस दे विच काम करना काफ़ी लंबे समय तो मैं ऐसे ऐसे उत्थे लोग देखदा, कई बार लोग कहणगे जिहड़े डम पागल कमले लोग ने वो जेलां च हुंदे ने, तो ये साडा भुलेखा है। मैं तो जिहड़े कंप्यूटर हैकरस वगैरह होंदे ने, इहो जिहे बहुत बच्चे अपनी कम्यूनिटी बड़े देखे ने, जिहड़ियां बड़ियां कारां ने, लग्जरी कारां, महंगियां कारां, इन्हां कारां दे जिन्हां दे मतलब जिहड़े लॉक की लॉक्स होंदे ने उस तरीके दे नाल इलैक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होंदे ने,
वो एक लड़का इत्थों ही साढ़े GT एरिए तो वो अंदर गया तो मैं देखा तो वो इतना स्मार्ट है कि मतलब की नू ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ कंप्यूटर तो फड़ के देर ही नहीं लाता 5 मिनटां कर दिंदा इन्नी मतलब अकल दी इंतहा पर कैसी अकल है जिन्हें जेल पहुंचा दिता कैसी अकल आ कहना पेगा इंटैलीजेंट तो बहुत है वाइज नहीं हैगा चॉइसिस वाइज नहीं बना रहा जिस चीज़ को किसी चंगे पासे यूज करता सो ये है अकल भी वो दे उत्तम मत जी उत्तम होए जो मेरा भला करे बंदे नूं गल्लां तो बड़ियां आउंदियां लफ्ज बड़े आउंदे बड़ा बंदा टाकटिव है बड़ा सोशल है सब कुछ है पर भला करे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना कि बुरा करे ये नहीं कि बैक बाइट करे पदसना करे सब चीज़ां चलाते एनर्जी सारी अगले बच्चन ने हरे आपे पंच तत्त विस्तारा विच धात पंच आप पावे ये 5 तत्तां दा विस्तार है शरीर 5 धातां इहदे च पईयां ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां दे विचों सही चूज करना है माड़े नूं छड्ड देना है जे बात की जाए क्रोध बीर रस बने साडा मोह दुनिया का स्नेह बने साडे अंदर जिहड़ी खास करके वाशना है ये खलूस मुहब्बत की शक्ल में आवे जे किते लालच आ ये संसार दे कंट्रीब्यूटर के तौर पर आवे भाव इस किस्म की सोझी आवे मैं इस जीवन दे विच चंगियाई हंडावां बुरियाई ना सोधी बात हो रही हरे आपे पंच तत्त विस्तारा विच धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपे हरे आपे चगर चुकावै हे नानक कह जदों सतगुरु नूं मिला दिंदा है करतार झगर चुकावै झगड़े चुक जाते हैं झगड़े चुकण का मतलब ये है जिन्नी निंदिया बखेलगी सवाए लड़ाई तो कुछ नहीं है झगड़ा ही झगड़ा है मन का झगड़ा है बाहर का झगड़ा है जिवें बंदा इहदे चों बाहर निकलिया झगड़े चुक गए ना वाधू गल करनी ना वाधू गल सुननी ना गलत गल कहनी ना गलत गल लैनी कम नहीं पढ़िया बंदे का जीवन अपने आप हर जन राम नाम गुण गावै फिर गल कादी होएगी रब की सिफत सलाह की गल कादी होएगी चंगियाई की अच्छाई की गुणात्मक पक्ष की साहब रहमत करन इन्हां आलमी वाक़िआं चों चंगेरी प्रेरणा मिले इन्नियां कबिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारियो सब प्रेम कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा